Hello students, and welcome to today's biology class. So we were discussing about the topics of genetics in previous classes, and we have seen into some of the diseases which are caused by a mutation. तो म्यूटेशन के चलते कुछ डिजीज जो कॉज होते हैं, जैसे आपका सिकल सेल एनीमिया हो गया और फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे. वी हैड डिस्कस्ड ब्रीफली एंड वी हैड सीन अबाउट हाउ दैट मोड ऑफ इनहेरिटेंस टेक्स प्लेस. टुडे विल डिस्कस अबाउट ए न्यू टॉपिक, और आज का टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस. लेट्स गेट इनटू द टॉपिक स्ट्रेट अवे. व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? जब हम लोग पेडिग्री एनालिसिस का बात करते हैं, व्हाट डज इट एक्चुअली स्टैंड फॉर? See, normally you need to understand the fact that most of the cross or most of this, you can say all the different kinds of genetic experiments that have been done, genetic characters that have been studied, all of them are a little bit of complicated topic when it comes to explain it to a layman or to a family. लाइक टेक द एग्जांपल, अगर आप किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि उसके फैमिली में कौन से कैरेक्टर्स हैं और वो किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, या फिर कौन से डिजीजेस हैं जो ट्रांसमिट हो सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस, तो आपको उसको जेनेटिक समझाने में बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट फ्रॉम जेनेटिक्स बैकग्राउंड. So they will not understand what is an X chromosome, what is a Y chromosome, or they will not be able to understand or differentiate between dominant genes, recessive genes, which are incomplete genes, which characters will be expressed, which characters will not be expressed. So this becomes very difficult for us to make people understand about the genetics of their own family. So that is the reason pedigree analysis has been devised. Now, what is pedigree analysis? पेडिग्री मतलब फैमिली ट्री. द वर्ड पेडिग्री लिटरली मींस फैमिली ट्री. तो पेडिग्री एनालिसिस का मतलब ही बन जाता है एनालिसिस ऑफ योर फैमिली ट्री, राइट? सो दिस वर्ड पेडिग्री इज, it means family tree, and analysis, as you know, to analyze it. Okay, so the study of inheritance of genetic traits in several generations of a family is called pedigree analysis. So study of inheritance of genetic characters या फिर genetic traits या फिर genetical diseases from in several generations of a family is called pedigree analysis. मतलब कोई एक जीन अगर आप स्टडी कर रहे हैं, सपोज आप लोग ले लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज यू आर टॉकिंग ऑफ द आई कलर. So you want to see what was the eye color in your parents and what was the eye color in your grandparents, and what will be your eye color in the next generation. You can study that. So these are common characteristics. But it is also essential to study different genetical diseases. जैसे इसे पहले ही हम लोग डिस्कस किए थे, there is a disease called as hemophilia. X linked inheritance डिस्कस करते टाइम हमने उसका एग्जांपल लिया था. Hemophilia रॉयल डिजीज भी बोला जाता है, प्रेजेंट इन द रॉयल फैमिली. Now, if you know that the mother is a carrier or is she hemophilic, what will be the percentage of chance that her child might suffer from this? That you can do it through a cross. Okay, so that kind of a study is called as pedigree analysis. Okay, study of inheritance of genetic traits in several generations of a family is called pedigree analysis. Now, ये जो pedigree analysis होता है, when you're discussing of it, it helps in genetic counseling of parents to avoid genetic disorders. जैसे मैं आपको बता रहा था कि it is not very easy to make people understand about genetics. आप उनको X chromosome, Y chromosome, dominant, recessive, codominant, X linked inheritance characters, ये सब नहीं समझा सकते, तो उनको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाना पड़ता है. तो हाउ डू यू एक्चुअली मेक इट सिंपल? कैसे हम लोग ये जेनेटिकल टर्म्स जो हैं, जेनेटिकल जो आपके एस्पेक्ट्स हैं, how you can counsel a parent about this kind of genetic disorders that might occur. तो उसके लिए क्या किया जाता है? There is a very simple technique. What we do, instead of using X, Y chromosome, genes and all, we simply use symbols. The family tree or pedigree is constructed using standardized set of symbols. तो ये कैसे बनाया जाता है? हम लोग एक standardized set of symbols बना लेते हैं और उसी सिंबल से हम उनको समझा लेते हैं. Like there are certain symbols, we'll get into that in a very short while. कि ये सिंबल्स जो होते हैं वो इजी होते हैं समझने के लिए. आप बता देंगे कि हाँ, ये सिंबल इसके लिए स्टैंड करता है, ये सिंबल इसके लिए स्टैंड करता है, तो इस तरह से आपके नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे ऐसे जीन्स इनहेरिट हो सकते हैं. दैट बिकम्स इजियर फॉर समवन टू अंडरस्टैंड, but it will be difficult to understand the genetical terms. Okay, and it also will include the information about disease status of each of the individual. तो ये जो symbolic representations हैं वो क्या हैं? It's not just symbol,
they will also include the status of the disease. मतलब if that person is affected or the person is normal or the person is carrier, that can also be represented through the symbols. Now let us see what these symbols are actually. हम लोग symbols देख लेते हैं क्या क्या है. Now here is on your screen, this is the different symbols. Square represents male, circle represents female, a bar between male and female or this square and circle is mating of the individuals, या फिर क्रॉस बोल सकते हैं आप इसे. नाउ जब आप पेरेंट्स को क्रॉस करेंगे तो आपका F1 जनरेशन आएगा. दैट F1 जनरेशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस काइंड ऑफ ए पैटर्न स्ट्रक्चर. एंड इफ देयर आर ट्विंस फिर दो टाइप के हो सकते हैं. वो मोनोजाइगोटिक हो सकते हैं, डाइजाइगोटिक हो सकते हैं. मोनोजाइगोटिक जिसको आप लोग आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, और डाइजाइगोटिक जिसको आप लोग नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं. तो अगर वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं, दिस विल बी द सिंबल स्क्वायर, सर्कल एंड ए ट्रायंगुलर you can say line connecting both of them. Similarly monozygotic twins जो हैं उसमें दोनों स्क्वायर ही होंगे, ठीक है, या फिर दोनों सर्कल भी हो सकते हैं. सी अगर दोनों मोनोजाइगोटिक ट्विंस या फिर आइडेंटिकल ट्विंस सन है तो स्क्वायर डालेंगे. अगर दोनों गर्ल हैं और इफ दे आर फीमेल चाइल्ड देन यू हैव टू पुट हियर सर्कल, ठीक है. नाउ इनसाइड दिस सर्कल और स्क्वायर यू कैन नंबर देम. मतलब कितने नंबर का चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड है, थर्ड चाइल्ड है, यू कैन गिव देम नंबर्स दैट विल बी रिटन विद इन द सर्कल. नाउ स्क्वायर, सर्कल, मेल, फीमेल. बट इफ इफेक्टेड मेल है या फिर इफेक्टेड फीमेल है, that will be shaded circle or square, ठीक है. मेल नॉर्मल स्क्वायर, नॉर्मल मेल नॉर्मल स्क्वायर, इफेक्टेड मेल शेडेड स्क्वायर. नाउ हाफ शेडेड स्क्वायर और सर्कल रिप्रेजेंट्स ए हेट्रोजाइगस कंडीशन या फिर कैरियर भी बोल सकते हैं. हम लोग देखें कि हेट्रोजाइगस कंडीशन इन केस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस दे आर कैरियर्स. फीमेल्स आर जनरली कैरियर्स. तो अगर वो कैरियर है तो हाफ शेडेड रहेगा. Now, carrier of sex-linked recessive genes, उनके लिए एक specific designation होता है circle and with a dot inside. अगर carrier है और वो भी sex-linked recessive gene के लिए, तो this will be the symbol. Now, if this is deceased मतलब if that individual has died, अगर उस family member का death हो चुका है, तो आप लोग ये represent करेंगे circle या square and a line passing through it. That means that person does not exist anymore. He or she is already dead. नेक्स्ट वन स्पॉन्टेनियस एबोरेशंस. कभी कभी ऐसा आता है कि वी डू नॉट जनरली नो बहुत स्पॉन्टेनियस कुछ टाइप के हमारे जेनेटिक एबोरेशंस होते हैं. ये जनरली यूज नहीं होता. सो यू कैन जस्ट इग्नोर दिस स्पॉन्टेनियस एबोर्शंस सॉरी. तो ये जनरली यूज नहीं होता. कभी कभी क्या होता है कि नाउ इफ यू वांट टू हैव ए चाइल्ड एंड ऑल ऑफ अ सडन यू डिसाइड यू डोंट वांट टू हैव ए चाइल्ड, तो उसको हम लोग अबॉर्ट कर लेते हैं. तो द चाइल्ड इज नॉट बॉर्न एक्चुअली बट यू गॉट प्रेग्नेंट विद इट. तो उसके लिए ये सिंबल यूज किया जाता है. बट जनरली इट्स अवॉइडेबल. बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस में ये सिंबल ज्यादातर यूज नहीं होता. नाउ अगर कॉन्सेंजियस मैरिज है, कॉन्सेंजियस मैरिज मतलब मैरिज विद इन द फैमिली, तो दो बार रहेंगे. नॉर्मली एक मेटिंग एक क्रॉस के लिए हम लोग सिंगल बार डालते हैं, लेकिन अगर विद इन द फैमिली मैरिज होता है बिटवीन ए मेल एंड ए फीमेल इंडिविजुअल, देयर विल बी टू लाइंस. Now the last symbol, which is a rhombus, stands for unknown sex. Now you'll find कि कुछ genetical conditions ऐसे होते हैं जहाँ पे आप उसको completely male individual या completely female individual नहीं बोल सकते. So in those conditions, like you have this Klinefelter syndrome or Turner syndrome, so in those conditions the individual will neither be completely male nor be completely female. Okay, or the categories of Unach, you'll find this kind of scenarios, right? तो वहां पे रोम्बस सिंबल डाल दिया जाता है, ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट सिंबल्स व्हिच यू विल बी यूजिंग इन पेडिग्री एनालिसिस. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. ये आपका हीमोफीलिया का एक एग्जांपल है. नाउ यहाँ पे वैसे ही वही सिंबल्स होंगे. नॉर्मल फीमेल है, सर्कल, शेडेड सर्कल, हीमोफिलिक फीमेल, हाफ शेडेड सर्कल, कैरियर फीमेल. नॉर्मल मेल, नॉर्मल सर्कल, हीमोफिलिक मेल, शेडेड सर्कल, ठीक है, स्क्वायर सॉरी. Normal male it is normal square, and for hemophilic male that is the shaded square. Now suppose ये वाला आप पेरेंट का देख लीजिए. Now let us understand what the parent genotype is. अगर इस कंडीशन में हम लोग इमेजिन करते हैं तो पहला वाला कैरियर है और हीमोफीलिया का कैरियर, तो ये क्या होगा, X capital H, X small h. Actually I'm not using subscripts here, आप लोग उसको खुद समझ लीजिए.
तो X कैपिटल H, X स्मॉल h, दिस इज अ कैरियर इंडिविजुअल। मेल क्या है? मेल नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल XY। X कैपिटल HY लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि डोमिनेंट जीन है, रेसेसिव जीन नहीं है। तो इसमें क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? देयर कैन बी 4 डिफरेंट ऑप्शंस। X कैपिटल H, X कैपिटल H यहाँ पे हो सकता है, नाउ दैट बिकम्स ए नॉर्मल फीमेल। ठीक है, ये कौन कौन से मीटिंग से हुआ है? You can see it is from this, from female X capital H and from this male X capital H. One will be normal. The next one, it can be X small h and Y chromosome. ये एक और जीनोटाइप हो सकता है, X small h and Y chromosome. That can be a combination. कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? यहाँ पे है आपका X small h और Y chromosome. That becomes a affected male now. ठीक है, हीमोफिलिक मेल हो गया। नॉर्मल भी हो सकता है, कैसे नॉर्मल होगा? अगर X कैपिटल H फ्रॉम द फीमेल इंडिविजुअल एंड X कैपिटल H सॉरी Y फ्रॉम द मेल इंडिविजुअल, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? इसका जीनोटाइप हो जाएगा आपका X कैपिटल H Y। ठीक है, so the male is normal because he is having the dominant gene X capital H, not the recessive gene, because hemophilia is due to the recessive gene small h. Similarly एक और वैसा नॉर्मल फीमेल हो सकता है। नॉर्मल फीमेल क्या होगा? X कैपिटल H, X कैपिटल H, राइट। अगर एक और चाइल्ड हुआ, सपोज देयर इज अनदर चाइल्ड बट सी इज कैरियर नाउ, कैसे कैरियर हुआ? यहाँ पे X स्मॉल h फ्रॉम द फीमेल एंड X कैपिटल H फ्रॉम द मेल, सो इट विल बिकम X कैपिटल H, X small h, so that becomes a carrier female. Again there is a normal male here. Normal male मतलब X capital H and Y। ठीक है, so ये हो गया आपके F1 जनरेशन। so ये जो क्रॉस हम लोग करते हैं, देखिए मैं इसके साथ क्रॉस कर देने का मतलब ये है कि आई रिप्रेजेंटेड बोथ द कंडीशंस हियर। ये क्रॉस भी है और ये सिंबल्स भी हैं, तो ये इजियर होता है किसी को समझाने में, किसी पेरेंट को काउंसलिंग करने में। तो आप एक्स वाई यूज नहीं करेंगे, एक्स वाई आई हैव यूज्ड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जब काउंसलिंग किया जाता है वो लोग क्या करते हैं? दे विल टेक स्क्वायर्स और सर्कल्स एंड दे विल रिप्रेजेंट। आई विल इरेज ऑल दिस। नाउ व्हेन यू आर काउंसलिंग समवन, तो आप लोग पेरेंट्स को कैसे करेंगे? यू विल टेल द पेरेंट्स कि देखिए आप में कोई डिजीज का कंडीशन नहीं दिखा रहा, यू आर नॉट हैविंग हेमोफिलिक, बट आपके पेरेंट्स में था, तो आप कैरियर हो, मतलब आप में जीन है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आप मेल इंडिविजुअल नॉर्मल है, उनके फैमिली में कुछ नहीं है, सो ही इज अ नॉर्मल इंडिविजुअल। अगर आप दोनों मैरिज करते हैं, मतलब फीमेल बीइंग कैरियर और मेल बीइंग नॉर्मल, अगर आप दोनों मैरिज करते हैं, आपका एक मेल चाइल्ड हीमोफिलिक होने का चांसेस है और एक और फीमेल चाइल्ड कैरियर बन सकती है। नेक्स्ट जनरेशन, अगर आपका जो हीमोफिलिक मेल चाइल्ड है वो एक नॉर्मल फीमेल के साथ या फिर नॉर्मल वाइफ वो पाता है, तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में आपका एक ग्रैंड चाइल्ड जो है वो कैरियर हो सकता है। तो ये सिंबल दिखा के आप किसी को समझा सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन की पेडिग्री एनालिसिस वाज डेवलप्ड। So I just made it for F1 generation. You can carry out for many generations as you wish. किसी भी फैमिली ट्री को आप स्टडी कर सकते हैं। In fact, you can study Queen Victoria's family as well. वो आपको नेट पे मिल जाएगा। So this is about the topic called as pedigree analysis. It is a graphical or symbolic representation of the cross of a family tree of a specific gene trait. Okay. Thank you.